Hello and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the current affairs for the month of March till 22nd of March. And first question is, what is count on? Count on is a phrasal verb of count. It means rely on someone or something. And sentence is, whatever you are doing, you can count on me. काउंट ऑन क्या है? काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है रिलाय ऑन समवन, यानी विश्वास करो किसी पे या किसी चीज़ पे। जैसे कि अपने यूएसए के प्रेसिडेंट अपने कनाडा दौरे पे काउंट ऑन फ्रेज का उपयोग किए और उन्होंने कैनेडियन पीपल को कहा कि कैनेडियन जो हैं वो ट्रस्ट कर सकते हैं यूएसए पे, यानी काउंट ऑन कर सकते हैं यूएसए पे। And next question is, the place in India which have featured in the Times World's Greatest Place of 2023। भारत के वे स्थान जिन्हें 2023 के टाइम के विश्व के महानतम स्थानों के लिए चित्रित किया गया है, वे स्थान है उड़ीसा का मयूरभंज और लद्दाख। The Tamil writer who has been chosen to be awarded the Saraswati Samman 2022 by K.K. Birla Foundation for her 2019 memoir सूर्यवंशम। तमिल लेखक जिन्हें उनके 2019 के संस्मरण सूर्यवंशम के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है मिस Shiva Shankari. Next question is, the RBI governor who has been awarded the Governor of the Year in the Central Banking Awards 2023। आरबीआई गवर्नर जिन्हें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है श्री शक्ति दास। Asia's biggest international food and hospitality fair held in New Delhi from 14 to 18 March is named। 14 से 18 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला का नाम है आहार 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the third edition of the Coordinated Multilateral Anti-Submarine Warfare ASW exercise for long-range maritime reconnaissance ASW aircraft conducted by the US Navy from 15 to 30 March with participation of India, Japan, Canada and South Korea is named। भारत, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया का भागीदारी के साथ 15 से 30 मार्च तक भारत अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित लंबी दूरी की समुद्री टोही MRASW विमान के लिए समन्वित बहुपार्श्व पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास का तीसरा संस्करण, जिसका नाम है पूर्व सी ड्रैगन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the multilateral exercise involving air forces from Finland, Sweden, South Africa, United States of America, UK, Singapore, India, conducted from 6th March to 24th of March at Waddington in UK is named पूर्व कोबरा योद्धा। फिनलैंड, स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, भारत की वायुसेना से जुड़े बहुपक्षीय वायु अभ्यास का आयोजन ब्रिटेन के वाडिंगटन में 6 मार्च से 24 मार्च तक किया गया, जिसका नाम था पूर्व कोबरा योद्धा। किया जा रहा है वर्तमान में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नोटेड हिंदी राइटर whose satirical novel Pagalkhana has been selected for the 2022 Vyas Samman by the K.K. Birla Foundation। प्रसिद्ध हिंदी लेखक जिनके व्यंग्य उपन्यास पागलखाना को के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, उनका नाम है श्री ज्ञान चतुर्वेदी।
The station in Karnataka under Southwestern Railway Zone, where the longest platform in the world is around 1.507 kilometer, was inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi, and the station name is SSS हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के तहत कर्नाटक का स्टेशन, जहां दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म जो कि 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.507 किलोमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, इसका नाम है ट्रिपल एस हुबली। The bilateral armor exercise conducted from 6 to 13 March 2023 at Jodhpur Military Station by Singapore Army and Indian Army was named। सिंगापुर सेना और भारतीय सेना द्वारा जोधपुर सैन्य स्टेशन में 6 से 13 मार्च 2023 तक आयोजित द्विपक्षीय कवच अभ्यास का नाम रखा गया है बोल्ड कुरुक्षेत्र व्यायाम करें। The multilateral maritime exercise conducted by the French Navy in the Indian Ocean from 13 to 14 March 23 with participation of Australia, India, Japan, UK and USA is named exercise La Péroche 2023. The former leader of Nepali Congress, who has been elected as the third president of Nepal, is Shri Ram Chandra पौडेल। श्री रामचंद्र पौडेल जो हैं तीसरी बार बन गए हैं नेपाल के प्रेसिडेंट। नेपाली कांग्रेस के पूर्व नेता जिन्हें नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ये हैं श्री रामचंद्र पौडेल। The Indian actor, director, producer, comedian and screenwriter who passed away on 9th of March 2023 and Indian actor and director named Satish Kaushik. Next question is the Indian weightlifter who has been named 2022 BBC Indian Sportswoman of the Year, becoming the first athlete win it twice in a row. भारतीय भारोत्तोलक जिन्हें वर्ष 2022 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, वह लगातार 2 बार जीतने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। उनका नाम है मिस मीराबाई चानू। The Hindi short story writer, novelist and poet who has been awarded the 2023 PEN Nabokov Award for Achievement in International Literature. हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 पेन नोबोकोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। The team which has won the Santosh Trophy 2022-23 defeating Meghalaya in the final played in Riyadh, Saudi Arabia. सऊदी अरब के रियाद में खेले गए फाइनल में मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022-23 जीतने वाली टीम है कर्नाटक। The maiden joint military exercise between Indian Army and French Army conducted at Pangode Military Station, Thiruvananthapuram, Kerala on 7th to 8th March 2023 is named। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच 7 से 8 मार्च 2023 को पंगोड़े मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम में केरल में आयोजित पहला संयुक्त अभ्यास का नाम है पूर्व फ्रेंजेक्स 23। The multilateral exercise conducted by the US Africa Command from 26 Feb to 16th of March 2023 in the East African coastal region and the West Indian Ocean is named INS
Trikhand of Indian Army also participated, and US अफ्रीका कमांड द्वारा 2020 सॉरी यूएस अफ्रीका कमांड द्वारा 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक पूर्वी अफ्रीका तट और पश्चिमी हिंद महासागर में किए गए बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है, जिसमें भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिखंड ने भी भाग लिया? इसका नाम है पूर्व कटलेस एक्सप्रेस। The 2022 Nobel Peace Laureate and human rights activist from Belarus, who has been sentenced to 10 years on charge of smuggling cash and financing protest. वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता, जिन्हें नकदी और तस्करी के और विरोध प्रदर्शन के वित्त पोषण के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई है, इनका नाम है एस बियालियात्स्की, जिन्हें वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। The joint exercise conducted by Indian Air Force and Japanese Air Self-Defense Force from 1st to 2nd March 2023 is named सिन्यू मैत्री व्यायाम 2000 व्यायाम यानी एक्सरसाइज 2023। भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेना आत्मरक्षा बल द्वारा 1 से 2 मार्च 2023 तक आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम है सिन्यू व्यायाम 2023। The type of aircraft procurement of which has been approved by the Union Cabinet from Hindustan Aeronautics Limited, जिस प्रकार के विमान खरीद को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, वो है HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान। न्यू चीफ मिनिस्टर्स, मेघालय चीफ मिनिस्टर श्री कोरनाड संगमा फ्रॉम नेशनल पीपल्स पार्टी, त्रिपुरा सीएम डॉक्टर मनिक शाह फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, एंड नागालैंड सीएम श्री नीपू रियो फ्रॉम नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी. The following have been re-elected as the chief minister of their state after the recently held assembly election. निम्नलिखित को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। मेघालय में श्री कोरनाड संगमा, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनिक शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। नागालैंड में पुनर्नियुक्त हुए नीपू रियो, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। भारत की 2 फिल्म को भारत में 2 अवार्ड आया है ऑस्कर से। एक आया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए, द एलिफेंट विस्परर्स, जिसे डायरेक्ट की थी कार्तिकी गोंजाल्विस ने, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को। ये नाटू नाटू सॉन्ग है आरआरआर फिल्म का, और म्यूज़िक दिया है एम किरवानी ने, और लिरिक्स जो लिखा है नाटू नाटू का, ये चंद्र बोस ने लिखा है। सो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट द एलिफेंट विस्परर्स, डायरेक्टेड बाय कार्तिकी गोंजाल्विस, won 95th Academy Award or Oscars Award, and Best Original Song Award goes to Natu Natu from RRR, music by M Kiravani and lyrics by Chandra Bose. सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु विषय कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा निर्देशित दी एलिफेंट विस्परर्स को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत आरआरआर से नाटू नाटू को मिला है, जो कि एम किरवानी द्वारा संगीत दिया गया है और चंद्र बोस के बोल हैं। 95वां अकादमी पुरस्कार ऑस्कर बेस्ट पिक्चर मिला है अवार्ड एवरीवेयर ऑल एट वंस, जिसका निर्देशन डेनियल क्वान और डेनियल शेनर्ट ने किया, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्वान और डेनियल शेनईट को मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और
बेस्ट पिक्चर अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है, जिसे डायरेक्टेड किया था डैनियल क्वान ने एंड डैनियल सीनैट ने। एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसी फिल्म के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, डैनियल क्वान एंड डैनियल सीनैट को मिला। मोस्ट नॉमिनेशन Most nominated film was Everything Everywhere All at Once and nominated in the 11th field. And most wins, of course, this is a film Everything Everywhere All at Once won 7 Oscars. सर्वाधिक नामांकन, हर जगह सब कुछ एक साथ 11 नामांकन था, जिसने अधिकांश जीत हासिल की 7। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में भारतीय प्रविष्टि चेलो शो गुजराती फिल्म जो कि नामांकित नहीं हो पाई गया था, यानी इंडियन एंट्री इन द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी चेलो शो गुजराती नॉट नॉमिनेटेड। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इट मीन्स जर्मनी, डायरेक्टेड बाय एडवर्ड बर्गर। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म इज Guillermo del Toro's Pinocchio, directed by Guillermo del Toro and Mark Gustafson. Best Actress award goes for the film Everything Everywhere All at Once, and award goes to Michelle Yeoh. Important days of March: Zero Discrimination Day, observed on 1st March 2023. World Wildlife Day, 3rd of March. World Hearing Day, 3rd of March. International Women's Day, 8th of March, designated by UNO, and theme was Digit All Innovation and Technology for Gender Equality. And International Women's Day celebrated from 1975. World's Kidney Day, observed on 9th of March 2023, or second Thursday of the March, which fall on 9th of March 2023 this year. International Day of Mathematics, observed on 14th of March, designated by International Mathematical Union, and theme is Mathematics for Everyone, observed in 2020. World Consumer Rights Day on 15th of March, designated by Consumers International, theme is Empowering Consumers Through Clean Energy Transition, first observed in 1983. The International Day to Combat Islamophobia, first observed in 2023 this month on 15th of March, designated by United Nations General Assembly. The International Day of Happiness, celebrated on 28th of March 2023, designated by UN General Assembly, theme is Be Mindful, Be Grateful, Be Kind, first observed in 2013. International Day for Elimination of Racial Discrimination, observed on 21st of March, designated by UN General Assembly, first observed in 1966, and theme and 75th anniversary of 75th anniversary of UDHR and impetus to combat racism. Global Terrorism Index 2023, released by Institute of Economic and Peace in Sydney, Australia, and global terrorist most residing in Afghanistan presently, second Burkina Faso, third is Somalia, and sixth place goes to Afghanistan. 29th place goes to Sri Lanka, and 13th place goes to India.
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में पहला स्थान है अफगानिस्तान का, बुर्किना फासो को मिला है दूसरा स्थान, सोमालिया को तीसरा स्थान, पाकिस्तान छठे स्थान में है, श्रीलंका 29वें स्थान पर है और भारत 13वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क गैलप वर्ल्ड पोल डेटा द्वारा संचालित है। फर्स्ट प्लेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड को गया है, सेकंड डेनमार्क को, थर्ड आइसलैंड को, फोर्थ इजराइल को, फिफ्थ नीदरलैंड को। भारत का प्लेस है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 और पहला प्लेस गया है फिनलैंड को। और भारत से भी अच्छा है नेपाल 78, पाकिस्तान 108, जबकि यहाँ पे क्योस चल रहे हैं फिर भी पाकिस्तान में फिर भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पर इनके जो पैरामीटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान 108 पे और भारत 126 पे है और अफगानिस्तान 137 पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पावर्ड बाय द गॉलुप वर्ल्ड पोल डेटा। फर्स्ट प्लेस goes for the world's happiest country goes to Finland and India scored 126th place. International Day of Forest observed on 21st of March. World Poetry Day 21st of March. World Down Syndrome Day 21st of March. It means International Forest Day, Poetry Day and World Down Syndrome Day is observed on 21st of March, all these three. And World Water Day is observed on 22nd of March and theme is very important, accelerating change, and it is designated by UN General Assembly. And International Forest Day theme is forest and health and first observed was in the year 2013.